थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आप लिखेंगे a thermodynamic process is said to occur a thermodynamic process is a thermodynamic process is said to occur if the thermodynamic variables of a system, if the thermodynamic a thermodynamic process is said to occur if the thermodynamic variables of a system thermodynamic variables of a system undergo a change with time, undergo a change with time, undergo a change with time. हाँ जी, अब उसके बाद आप ये लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर different types of thermodynamic processes are फर्स्ट लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में an isothermal process is one in which the pressure and volume an isothermal process is one in which the pressure and volume an isothermal process is one in which the pressure and volume of the system change pressure and volume of the system change but temperature remains constant. But temperature remains constant. But temperature remains constant. तो यहाँ पर नोट करें कि consider n moles small n moles of an ideal gas contained in a cylinder n moles of an ideal gas contained in a cylinder n moles of an ideal gas contained in a cylinder having conducting walls
in conducting walls and provided with frictionless and movable piston. Provided with a frictionless and movable piston. And provided with a frictionless and movable piston. And provided with a frictionless and movable piston. Next point लिखेंगे, let P be the pressure of the gas. Let P be the pressure of the gas. Let P be the pressure of the gas. डायग्राम वही जो हम हर एक पे बनाते आ रहे हैं कि एक कंटेनर बना लेना है, उस कंटेनर में एक पिस्टन लगा देना है, कंटेनर और कंटेनर में एक पिस्टन और उसके अंदर एक गैस भरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा डायग्राम, आपको देखिएगा कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैस और ये वाला जो डिस्टेंस है ये लिखेंगे dx। हमने गैस के प्रेशर को कितना मान लिया, P मान लिया, लेट P बी द प्रेशर ऑफ द गैस। फिर लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस व्हेन द पिस्टन मूव्स अप work done by the gas when the piston work done by the gas when the piston moves up through a small distance dx is given by moves up through a small distance dx is given by through a small distance dx is given by W जो वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dW हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, ठीक है। और A इनटू dx हमें पता है कि इसका जो एरिया है वही A है, तो A इनटू dx क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो dW को लिखा जा सकता है P dV, dW इज इक्वल टू P dV, ये हो गया, dW इज इक्वल टू P dV। फिर हम लिखेंगे सपोज द गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, सपोज द गैस एक्सपेंड्स isothermally, suppose the gas expands isothermally from initial state to the final state, isothermally from initial state P1, V1, from initial state P1, V1 to the final state P2, V2. To the final state P2, V2. Full stop. The total amount of work done will be the total amount of work done. The total amount of work done will be W ISO is equal to W ISO, ISO का मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन है उसको W ISO बोल देते हैं।
डब्ल्यू आईसो इज इक्वल टू V1 to V2 P dV, V1 to V2 P dV। समझिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज। कि किसी भी सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम रहना, ठीक है, तो वो आपका सेम रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या करा कि एक सिलेंडर मान लिया, उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और गैस का जो प्रेशर है वो P है, तो गैस अपने प्रेशर P की वजह से इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर देती है। कितना डिस्टेंस? dx। तो इसका जो पिस्टन है, पिस्टन का टॉप का एरिया A है, A इंटू dx उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो जब वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, अब प्रेशर को एज इट इज छोड़ें, एरिया इंटू dx अगर कर देंगे तो dv आ जाएगा, dv यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। तो dw इज इक्वल टू pdv, हमें मालूम है वर्क डन बाई अ गैस ये pdv होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो है क्या कि गैस जब एक्सपैंड हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि इनिशियली उसका प्रेशर P1 था, तो गैस जब एक्सपैंड होगी तो धीरे धीरे उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। पहले गैस इतने से पोर्शन में आ रही थी, अब गैस इतने पोर्शन में आ रही है। तो जब इतने पोर्शन में थी तो ज़्यादा प्रेशर था उसमें कि भाई पुश करना है उसको, तो वो पुश करके उसने उसका जो एरिया है वो बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया इसका मतलब प्रेशर रिड्यूस हो गया और वॉल्यूम भी बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले प्रेशर P1 था, फिर प्रेशर P2 हो गया, पहले वॉल्यूम V1 था, फिर वॉल्यूम V2 हो गया। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो अब जब मैं PdV, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा भाई dW को, dW की हेल्प से जब मैं वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालूंगा तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV, ये हो गया। इसके बाद जब ये PdV आ गया, हम ये कहेंगे फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस। अब यहाँ पर नोट करें पहले, फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस, और n moles of a gas PV is equal to nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। For n moles of a gas PV is equal to nRT और P is equal to nRT upon capital V, और P is equal to nRT upon capital V। Therefore W iso is equal to, therefore W iso is equal to integration V1 to V2, P की वैल्यू यहाँ डाल देंगे nRT अपॉन V इंटू डी वी, ये कर दिया, P की जगह ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है, n नंबर ऑफ मोल्स है ये भी कांस्टेंट, इनको तो निकालो बाहर। W आइसो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT तो आ जाएगा बाहर, और ये हो गया इंटीग्रेशन V1 टू V2 और dV अपॉन V, dV अपॉन V, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो dV अपॉन V का क्या हो जाएगा? log V। तो nRT, अच्छा जब हम ये dV अपॉन V करते हैं ना, तो एक्चुअली वो नेचुरल लॉग आता है। तो लॉग के बेसिस होते हैं, एक होता है log टू द बेस 10, एक होता है log टू द बेस e। तो वो नेचुरल लॉग आता है, नेचुरल लॉग को ऐसे लिखा जाता है ln, है ना, ये भी लॉग ही है, नेचुरल लॉग, तो ln लिखते हैं, ln V, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट इज V1, अपर लिमिट इज V2। तो W आइसो इज इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1, ln V2 माइनस ln V1, ये हो गया। और इसको क्या कहा जा सकता है? जब log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A अपॉन B, तो W आइसो इज इक्वल टू nRT इंटू ln V2 अपॉन V1, log A माइनस log B इज log A अपॉन B, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ना हम इसको अगर हम नॉर्मल वाले लॉग में, यानी कि log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा मेथड होता है, उस पूरे टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये होता है। वैसे वर्क डन बाई एन आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, बस इतना ही है, नेचुरल लॉग की टर्म्स में लिखे तो इतना ही है। लेकिन अगर आप log टू द बेस 10 उसकी टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं, तो उसमें आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस,
तो ये हो गया 2.303 इंटू nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हुआ वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस आया। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में फिर हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बस क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? वो क्यों पेन को परेशान कर रहे हो? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में नोट कीजिएगा, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर An adiabatic process is one in which the pressure, volume and temperature of the system volume and temperature of the system change, but there is no exchange of heat. But there is no exchange of heat. There is no exchange of heat between the system and surroundings. Between the system and surroundings. ठीक है ना। तो एडियाबैटिक वॉल आपको शायद शुरू में बताया था कि एडियाबैटिक वॉल में ऐसा होता है कि भाई एक तरह से पूरी तरीके से इंसुलेशन हो जाता है कि प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है उस प्रोसेस का। ठीक है। लेकिन सराउंडिंग के साथ किसी तरीके का हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। मतलब हीट जो है वो बाहर भी नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर भी नहीं आएगी। ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें आपको नोट करना होगा, जैसे ये तो हो गया एडियाबैटिक रिलेशन, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगला जो टॉपिक मैं इसमें लिखूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं। ठीक है। मतलब थोड़ी सी लंबी है। ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछी जाती हैं। नोट कीजिए, एडियाबैटिक रिलेशंस बिटवीन P, V एंड T। एडियाबैटिक रिलेशंस between P, V and T, pressure, volume and temperature. P, V and T, pressure, volume and temperature. एडियाबैटिक रिलेशंस निकालना है। तो पहले निकालेंगे P और V में रिलेशन, P और V में रिलेशन निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे P और T में रिलेशन, और फिर निकालेंगे V और T में रिलेशन। ठीक है। बस 1 मिनट रुकिएगा। पानी चाहिए? यस सर। दे रहा हूँ।
G2 होता है या G2 होता है? G2 होता है ना, JEETU। हाँ G2 वही होता है, G2 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 होता है G2 मैसेज आ गया G2 का। क्लास में है वो? नहीं चलिए जी, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 3 रिलेशन करेंगे। तो पहला देखेंगे एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V। इसमें फर्स्ट देखेंगे एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V। प्रेशर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक रिलेशन क्या होता है? अगर तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर है, फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 13 को है केमिस्ट्री, अच्छा, फिर उसके बाद 16 को फिर सीधा 16 को है। काइनेटिक थ्योरी के लिए फिर किस दिन आ सकते हो? कल आ सकते हो। उसके बाद तो नहीं आओगे, उसके बाद तो फिर केमिस्ट्री करना होगा ना। काइनेटिक थ्योरी कौन सा? इसके बाद वाला चैप्टर इनके में आ रहा है वो। ये हमसे तो इतना पीछे थे, हमसे तो ये इतना पीछे थे। अरे ये पीछे और आगे मिक्स चलता है इनका, मतलब एक चैप्टर पुराना भी आ रहा है, वॉल्यूम 1 का भी आ रहा है, ऐसा है ना। एक वॉल्यूम 1 का आ रहा है और 3 वॉल्यूम 2 के आ रहा है। थिंक डिफरेंट। DDPS एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V। तो इसमें क्या करेंगे, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V में सबसे पहले नोट करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq मतलब चेंज इन हीट है ना, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर for 1 mole of a gas, du is equal to Cv dt। Cv dt du is equal to Cv dt for 1 mole of a gas, ठीक है। and dw is equal to Pdv and dw is equal to P। dw is equal to Pdv हमने पहले वाले रिलेशन में भी देखा था। तो du is equal to Cv dt ये कहाँ से आया, जो हमने मेयर्स फार्मूला करा था ना। तो मेयर्स फार्मूला में आप ये देखेंगे कि हमने वहाँ पर देखा था कि du is equal to Cv dt होता है, ठीक है। मतलब Cv is equal to डेल्टा u बाई डेल्टा टी आया था, ठीक है। अगर मतलब मैं उसको स्पेसिफिक हीट एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के रिलेशन में देखूँ तो हमने 2 इक्वेशंस देखी थी वहाँ। Cv इज इक्वल टू डेल्टा u बाई डेल्टा टी था। तो डेल्टा u बाई डेल्टा टी बोलो या du बाई dt बोलो, तो du बाई dt इज इक्वल टू Cv, तो dt इधर चला गया, तो du इज इक्वल टू Cv dt। इस तरह से हो गया, समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे ऑल्सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑल्सो फॉर an adiabatic also for an adiabatic process also for an adiabatic process जो हीट में तो कुछ भी बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि हीट ना तो सराउंडिंग से वो लेता ना सराउंडिंग को देता। तो ऑल्सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू 0, dq इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
फर्स्ट लॉ बिकम्स, तो जो शुरुआत में हमने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम डी यू की जगह क्या लिखेंगे सी वी डी टी, डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे पी डी वी, और डी क्यू की जगह लिखेंगे जीरो, ठीक है ना। तो डी यू की जगह लिख देंगे सी वी डी टी, सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू की जगह लिख देंगे पी डी वी, और डी क्यू की जगह लिख देंगे ज़ीरो। ये हो गया। उसके बाद बोलेंगे ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बोलेंगे, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में लिख दिया फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो 1 मोल का मतलब एन की वैल्यू तो 1 हो गई ना भाई, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल ऑफ अ गैस की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो जब पी वी इज इक्वल टू आर टी है, तो अब आप क्या करिए, ये वाली जो इक्वेशन है ना पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा पहले पी और वी दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, पी और वी दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, टी भी वेरिएबल है। किसकी बात कर रहा हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होते हैं, तो सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पी इंटू वी, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कांस्टेंट तो दोनों में से कुछ भी नहीं, वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि वी एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, भाई आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और टी को टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको ऐसे लिख लें पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है जब दोनों के डिनोमिनेटर में डी टी है, इज इक्वल टू आर हो गया, तो इस डी टी को उधर ले जाओ, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी टी, ये हो गया। और ये करने के बाद में अब आप क्या करिए, डी टी की वैल्यू निकाल लो, डी टी की वैल्यू, इट इम्प्लाइज दैट डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी टी की। अब डी टी की इस वैल्यू को कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, बोलिएगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन 1। बोलो, हाँ बोलो ना, लिखिएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ डी टी दिस वैल्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन 1, डी टी की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो सी वी यानी कि स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डीटी, डीटी की जगह ये डाल देंगे पीडीवी प्लस वीडीपी, पीडीवी प्लस वीडीपी अपॉन आर प्लस पीडीवी इज इक्वल टू प्लस पीडीवी इज इक्वल टू 0। ये हो गया ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी, और ये आर अंदर चला जाएगा प्लस आर पी डी वी, आर पी डी वी और अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, कैपिटल आर में मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे सी वी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी प्लस आर पी डी वी इज इक्वल टू 0, आर इंटू 0 हो गया 0। उसके बाद क्या करेंगे,
सी वी इंटू वी डी पी, इसको लिख लेंगे पहले। ये जो सी वी इंटू वी डी पी है इसको पहले लिख लो, सी वी इंटू वी डी पी, इसको पहले लिख लिया। और फिर क्या करेंगे, जैसे ये डी वी वाला टर्म है, ये डी वी वाला टर्म है, तो इसमें अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसमें पी डी वी इधर भी आ रहा है, पी डी वी इधर भी आ रहा है, तो पी डी वी कॉमन लेकर बाद में लिख लो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सी वी प्लस आर इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक मेयर्स रिलेशन हमने देखा था, मेयर्स रिलेशन क्या था, नहीं देखा था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो अगर सी वी प्लस आर हो तो सी पी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला यही था। तो हम ये कहेंगे सी वी इंटू वी डी पी प्लस सी पी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में करके लिख लेना, बिकॉज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये मेयर्स फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, ठीक है। तो सी वी इंटू वी डी पी प्लस सी पी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई सी वी पी वी। तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई सी वी इंटू पी इंटू वी, सी वी पी वी से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे होगा, सी वी इंटू वी डी पी अपॉन सी वी इंटू पी वी प्लस सी पी इंटू पी डी वी अपॉन सी वी पी वी इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 ही रहेगा। अब इधर सी बी से सी बी कैंसिल, इधर पी से पी कैंसिल और इधर बी से बी कैंसिल, तो ये क्या आ गया, डी पी अपॉन पी प्लस सी पी अपॉन सी बी इंटू डी वी अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक सी पी अपॉन सी बी जो है वो गामा के इक्वल होता है, ठीक है, गामा कांस्टेंट होता है, सी पी अपॉन सी बी की जगह मैं लिख दूंगा गामा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dp अपॉन पी, dp अपॉन पी प्लस cp अपॉन cv को क्या बोलेंगे, गामा इंटू dv अपॉन v इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए भाई। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन dp अपॉन पी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो गामा कांस्टेंट, ये आ जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू 0। 0 का इंटीग्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब क्या होता है कि जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ना, उसको C1 मान लेते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको C2 मान लेते हैं। तो C1 प्लस C2 को कलेक्टिवली उधर ले गए अगर हम, तो वो माइनस C1 और माइनस C2 हो जाएगा। उन माइनस C1 माइनस C2 को भी C बोल दो, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा जैसे dp अपॉन p है, तो dp अपॉन p क्या बन जाएगा, log p बोल दीजिए इसको, ये गामा है, और dv अपॉन v को इसको log v बोल दीजिए और इज इक्वल टू c बोल दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कलेक्टिवली, इधर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया इसमें, इधर भी नहीं लगाया, उसको कलेक्टिवली उधर ले गए, ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई। माइनस C1 माइनस C2 हो जाएगा, उसको उधर जाकर मैंने c बोल दिया कलेक्टिवली। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा,
तो आप ये देखिएगा कि ये जो हमने लिखा है, अब यहाँ पर मैं ln भी लिख सकता था, नेचुरल लॉग ln भी लिख सकता था, एक्चुअली नेचुरल लॉग ही है, तो बेस में अगर ई लगा दें तो ln लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बेस में ई लगा दीजिए, ज़रूरत नहीं होती उसकी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि लॉग से पहले अगर कोई टर्म लिखा हुआ है तो लॉग के बाद वाली टर्म की पावर में आ जाता है वो। सर हाँ कितना बचा है? थोड़ा सा देखो, 1 मिनट का बच रहा है एक मिनट है ना? हाँ ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा वाला टॉपिक वो बाद में देख लेना तुम। फिर जैसे ये लॉग पी है और बेस में ई है, प्लस इसको क्या बोलेंगे, लॉग वी बेस में ई और इसकी पावर में गामा इज इक्वल टू सी। ये हो गया। तो अब क्या हो गया, लॉग से पहले अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है तो लॉग के बाद वाली टर्म के पावर में उसको रख सकते हैं। लॉग ए प्लस लॉग बी बन गया, ठीक है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब होता है लॉग ए बी। तो लॉग पी वी की पावर गामा और बेस में ई है इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। अब ये जो लॉग का बेस ई है इसको हटा देंगे तो ये वाली जो टर्म है ये ई की पावर सी में बन जाएगी। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू ई की पावर सी। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, वेयर ई की पावर सी इज इक्वल टू के। ई की पावर सी को हमने के बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज द एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एडियाबैटिक रिलेशन पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को हमने के मान लिया, ठीक है ना। अब जा सकते हो। सर आपने सी पी अपॉन सी वी को क्या लिखा? सी पी अपॉन सी वी जो है इसको गामा बोलते हैं। सी पी अपॉन सी वी को गामा बोलते हैं। ये इसका रेशियो होता है सी पी अपॉन सी वी का, कांस्टेंट होता है, ठीक है। यस सर। हाँ जी चलिए आप सेकंड लिखिएगा। वो उसको भेज रहा हूँ, उसकी क्लास है ना, अभी तो एक डेरिवेशन और हो जाएगा, वो छोटा है। ये वाला डेरिवेशन बड़ा था, बस अगला छोटा है। सेकंड देखिएगा। सेकंड में है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। जैसे ये था एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड वी, अब है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। तो प्रेशर और टेम्परेचर में एडियाबैटिक रिलेशन क्या बनेगा, हम ये कहेंगे फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। For 1 mole of a gas, for 1 mole of a gas, PV is equal to RT. Therefore, V is equal to RT upon P. Therefore, V is equal to RT upon P. V is equal to RT upon P। अब ये करिए पुटिंग इन P V की पावर गामा इज इक्वल टू K। लिखिएगा पुटिंग इन P V की पावर गामा इज इक्वल टू K, वी गेट पुटिंग इन P V की पावर गामा इज इक्वल टू K, वी गेट V की वैल्यू तो आर टी अपॉन पी है ना, तो P और V की जगह आप लिख दें आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, देखिएगा ये हो गया P की पावर 1 इंटू आर की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू के। अब ये गामा अगर ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा R की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू के। R की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो इसमें क्या करा,
ये जो r है, गामा भी एक कांस्टेंट है, Cp अपॉन Cv का रेशो r भी एक कांस्टेंट है, तो इसको इस कांस्टेंट के पास ही ले जाओ। ये हो गया p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा इज इक्वल टू k अपॉन r की पावर गामा, k अपॉन r की पावर गामा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट था ही के, है ना, और अपॉन आर की पावर गामा वो भी कांस्टेंट है, तो ये एक अनदर कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा प्रेशर में, एडियाबैटिक रिलेशन में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन हो गया। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, तो 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में तीसरा मैं रिलेशन करा दूंगा, ये खत्म ही हो जाएगा। तीसरा रिलेशन और नोट कर लो। हाँ जी, तीसरा रिलेशन है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T। एडियाबैटिक रिलेशन, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में एडियाबैटिक रिलेशन हमको देखना है। तो अगेन यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस PV इज इक्वल टू RT। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ से रिलेशन P और T में निकालना था तो V निकाल लिया। अब रिलेशन V और T में निकालना है तो P निकाल लेना। तो P क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। P हो गया RT अपॉन V। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। पुटिंग इन PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, तो P की जगह RT अपॉन V डाल दो। RT अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, तो R एज इट इज T की पावर 1, नीचे V की पावर 1, ये है V की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो इसको R को उधर ले जाओ, ये हो गया T की पावर 1 इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन R। तो T की पावर 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, K अपॉन R अनदर कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है जी, ये है। फिर अगली क्लास में हम वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देख लेंगे। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देख लेंगे, और फिर है हमारा इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं, कार्नोट इंजन, हीट इंजन वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके।